Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ ਓਨਲੀ ਵੈਨ ਦ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਵ ਅਟੇਨਡ ਦ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ। ਯਾਨੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੇ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 138.0 ਲੀਟਰ ਪਰ ਮੋਲ। ਵਟ ਐਵਰ ਮੇ ਬੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਨਾ ਕੇ ਦੀ ਉਹ 298 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੈਲਿਊ ਫॉर एवरी रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टैंपरेचर। हर पर्टिकुलर टैंपरेचर ते हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन ਲਈ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ पर्टिकुलर ਵੈਲਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 48, ਇਹ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਜਸਟ ਰਿਵਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48 ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2HI ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ H2 + I2, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1/48। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਵਰਸ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ 2HI ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਸੀਗਾ 148 ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ K ਫਾਰਵਰਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/K ਬੈਕਵਰਡ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ KSO2 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ 5th ਪੁਆਇੰਟ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਲ ਦ ਐਕਸਟੈਂਟ ਟੂ ਵਿਚ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਹੋਈ, ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ। ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਵਰਡ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋਏਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, K ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ अपॉन रिएक्टेंट दी, ए बी रिएक्टेंट है सी डी प्रोडक्ट है। ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कॉन्सनट्रेशन, यानी जिन्ना ज़्यादा प्रोडक्ट बने उन्नी के दी वैल्यू ज़्यादा, या कह सकते के जिन्ना ज़्यादा आया ਇਹਦਾ मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनया मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हुई, जे वैल्यू घट होंगी के दी दैट मीनस रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हुई। ठीक है, सो इस तो भी सानू पता लगता है। सो आप ये कहने कि जे वैल्यू लार्ज है कि मतलब प्रोसीड जी रिएक्शन ज़्यादा हुई है फॉरवर्ड रिएक्शन वालों, एंड जे स्मॉल वैल्यू का मतलब रिवर्स रिएक्शन वाले जी रिवर्स रिएक्शन से ज़्यादा प्रोसीड की है। क्लीयर? सो ये तो सानू भी पता लगता कोई रिएक्शन कितनी ज़्यादा फॉरवर्ड या रिवर्स गई है। ज़्यादा वैल्यू होएगी कि मतलब फॉरवर्ड ज़्यादा गई है, घट वैल्यू है तो रिवर्स ज़्यादा गई है। जे नहीं तो कुछ पॉइंट्स क्लीयर होंगे उन्होंने एज इट इज़ जिदा मैं बोलती हुई हूँ, तो अपने नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ इंडिपेंडेंट द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। देखो कैटालिस्ट ना ते भी इंडिपेंडेंट है वो प्रेजेंस से। क्यों? तुहानू पता जिन्ना फॉरवर्ड इंक्रीज़ करेगा कैटालिस्ट उन्ना ही बैकवर्ड इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड तो बैकवर्ड इक्वली एक्सटेंड करता है कैटालिस्ट, इस करके जोड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उन्होंने कैटालिस्ट के नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण ये ना कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टैंपरेचर डिपेंडेंस दसदे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। उहदे लई तुहानू जस्ट ये वाला रिलेशन याद रखने की लोड़ आ। log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H/2.303 1/T1 माइनस 1/T2। इत्थे K1 K2 तुहाडे कोल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैगे ने। इदां दी आपां इक्वेशन तुहानू याद होवे तां आर्हीनियस जो इक्वेशन सी उहदे विच भी कीता सीगा। ठीक है, तो T1 T2 रिस्पैक्टिव टैंपरेचर है, डेल्टा H की है चेंज इन एंथैल्पी रिएक्शन लिए। ठीक है, आप मन के चलते हैं पहला कि डेल्टा H इंडिपेंडेंट है टैंपरेचर से, दैट मीनस डेल्टा H 0 है, मतलब कोई हीट ना इवॉल्व हुई। देखो तीन ही केस ज़्यादा डेल्टा H पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई, नैगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकली, डेल्टा H 0 मतलब ना इवॉल्व हुई तो ना
ना इवॉल्व हुई तो ना एब्जॉर्ब हुई। सो पहला केस ले लिया कि डेल्टा एच 0 हैगी है। सो डेल्टा एच 0 फॉर्मूले पुट कर दो लॉग K2 अपॉन K1 इतने सीगा डेल्टा एच अपॉन 2.303 वाला। सो डेल्टा एच जो 0 पुट कर दिता सारी चीज़ इधर वाली तो 0 बन जाएगी। इतने देख लो इधर 0 एच पुट करेंगे पूरी चीज़ 0 बन जाएगी ना। सो इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीनस लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू 0 0 तो कितना इधर 1 आ गया, दैट मीनस K2 अपॉन K1 इक्वल टू 1 हो गया। क्योंकि साढ़े को log 1 0 होंगे ना, इतने मैं 0 जगह log 1 लिख सकती, log ना log कैंसल होएगा। सो K2 इक्वल टू किया गया K1। दैट मीनस इतों पता लगता कि जो जेडे इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट आ वो डज नॉट चेंज विद टैंपरेचर, वो टैंपरेचर नाल चेंज नहीं होंगे। सो पहला केस इतों ये हो गया। दूसरा केस ये केस तो ये हो गया ना, उस इक्वेशन पिछली वेंट ऑफ इक्वेशन कहते हैं। हुण दूसरा केस ले लें आप डेल्टा एच पॉजिटिव, यानी इधर आंसर किया गया पॉजिटिव, यानी लॉग K2 ग्रेटर दैन किया गया K1, ठीक है, यानी K2 ग्रेटर दैन K1। ओके, ਇਹਦਾ मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इनक्रीज करता विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, यानी जे साडे कोल जे वाली रिएक्शन आ सिंपल ना हीट इवॉल्व हुई ना एब्जॉर्ब हुई, फिर तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट रहता टैंपरेचर, यानी नहीं चेंज करता। बट जे रिएक्शन हैगी एंडोथर्मिक, यानी हीट एब्जॉर्ब हुई है पॉजिटिव आ, दैन साडे कोल की है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इनक्रीज कर जाएगा विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। इन केस नैगेटिव आ, यानी घट गई वैल्यू, ये केस च की होएगा वो डिक्रीज करेगा विद डिक्रीज इनक्रीज इन टैंपरेचर। तीन केस आ वेरी इंपॉर्टेंट आ, पेपर से डायरैक्ट पूछे जा सकते हैं। ईवन पूरे तीनों के तीनों केस स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकता, किसी भी तरह पूछ सकता। सो तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि जे तो डेल्टा एच 0 है ना हीट एब्जॉर्ब हुई ना इवॉल्व, तो कोई फर्क नहीं पैना इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो। जे पॉजिटिव हैगी आ मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हैगी, हीट एब्जॉर्ब हुई आ, दैन वैल्यू इनक्रीज करने नाल की करेगी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू ਵਧੇਗੀ टैंपरेचर ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। उदा मैं तुहानू इत्थों जे तुसीं क्रैम नहीं ना करना, मैं तुहानू एक होर दसदी तरीका याद करन दा। हुण देखो इन कॉन्सैप्ट नू समझिए, रिएक्शन हैगी एंडोथर्मिक, एंडो मतलब इधर लेट्स से दिस इज़ अ रिएक्टेंट, इधर बनना प्रोडक्ट। एंडोथर्मिक का मतलब इनू हीट चाहिए है, एंडोथर्मिक का मतलब इन्हें हीट चाहिए है। हुण के की हुंदा साडे कोल, इधर उपर प्रोडक्ट की कॉन्सनट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की ही हुंदी। हुण हीट चाहिए है मतलब मैं टैंपरेचर दिता, हीट दी, यानी प्रोडक्ट की करेगा ज़्यादा तो ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा तो ज़्यादा बनेगा, ठीक है। जे प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किया के, यानी के भी बढ़ेगा, यानी टैंपरेचर ਵਧਾਇਆ इत्थे तक प्रोडक्ट ज़्यादा बनया, प्रोडक्ट ज़्यादा बनया, के बढ़ गया, मतलब कि टैंपरेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ के बढ़ गया, ठीक है, सिंपल जा। जे दूसरा केस गल करिए आप डेल्टा एच नैगेटिव, नैगेटिव मतलब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनना है, उन्हें हीट अपने चो वाधू बाहर कढ़नी है, ठीक है, इवॉल्व होनी है, हीट बाहर निकलनी है। के तो अगेन वही होंगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हुण जे तुसीं इस केस च हीट बहुत दोगे तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा नहीं, क्योंकि उनका पहले ही अपने एक्स्ट्रा हीट इवॉल्व करके होना, ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बनेगा, के की वैल्यू घटेगी। सो इस करके एक्सोथर्मिक के केस जो टैंपरेचर ਵਧਾਉਂਦੇ हैं जो के की वैल्यू वो घटती है। सो जे तुसीं इदां भी याद रखो कि तुहानूं बैटर जी अंडरस्टैंडिंग जी हो सकती है, ठीक है। सो इदां तुहानूं कभी भुलेगा भी नहीं जे क्रैम करना जिद्दां भी। नैक्सट आप देखते हैं हुण इहदियां एप्लीकेशनस। देखो एप्लीकेशनस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगियां। जी न्यूमैरिकल वैल्यू हैगी ना इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हैल्प कर दी है अस टू नो वैदर वी एक्सपैक्ट रिएक्शन मिक्सचर जो इक्विलिब्रियम ते कंटेन करेगा हाई या लो कॉन्सनट्रेशन प्रोडक्ट की। फिर इंडस्ट्री के यूजफुल होएगा डाटा जो सानू वैल्यूज़ पता होणगियां, ठीक है। सो ये तीन मेन एप्लीकेशन और डिस्कस करते हैं। पहली तो हैल्प करता टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैगनीट्यूड, यानी के दी वैल्यू तो मैगनीट्यूड तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है, एक्सटेंट दस सकते हैं, ठीक है। दूसरा डायरैक्शन, रिएक्शन की डायरैक्शन दसदा फॉरवर्ड या बैकवर्ड। दूसरा हैल्प टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सनट्रेशनस, ठीक है। इन्हें तीन हैल्प करता है वैल्यूज़ फाइंड आउट करने लिए। फर्स्ट है उन्हें डिस्कस कर दिया मैगनीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब कितना मैगनीट्यूड तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब के की वैल्यू तो। सो आप मैं मेन पॉइंट तुहानूं दसदा कि जो के की वैल्यू ज़्यादा हैगी तो मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनया तो मतलब रिएक्शन ज़्यादा किद्दां हुई, फॉरवर्ड हुई, यानी कि रिएक्शन ज़्यादा हुई, ठीक है। ये तो मैं तुहानूं समझा भी आई ना किद्दां पता चलता है कि जे के की वैल्यू ज़्यादा हैगी आ, ਇਹਦਾ मतलब प्रोडक्ट जो ज़्यादा बनेगा कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सनट्रेशन प्रोडक्ट दे हुंदा ना, इनवर्सली रिएक्टेंट दे हुंदा, इस करके मतलब के की वैल्यू ज़्यादा तुहानूं की दस रही है कि उत्थे ज़्यादा की बनेगा प्रोडक्ट। सो ये जे घट होएगी वैल्यू ਇਹਦਾ मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो जानी है, ठीक है। सो तो रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड घट प्रोसीड की। हुण जो इत्थे बहुत वधिया एग्जाम्पल में जो तुसीं इहनूं समझो ना तुहाडे काफ़ी इत्थे जिहड़े पॉइंट्स क्लीयर होणगे। जिद्दां एग्जाम्पल दित्ती है ना, ये फॉर एग्जाम्पल सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई। हुण के की वैल्यू बहुत स्मॉल आई ना, मतलब कि ये सानूं दसदी आ स्मॉल वैल्यू ही दसदी आ कि जिहड़ी ये रिएक्शन आ ये फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं जा रही,
ठीक है ना, मतलब कि ਜਿਹੜਾ NO2 ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ NO2 ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਸਟੇਬਲ, ठीक है, यानी ये डीकम्पोज करेगा बहुत घट, ठीक है। ये तो देख लेंगे अपना NO2 इज़ क्वाइट स्टेबल एंड डीकम्पोज ओनली स्लाइटली, क्यों, क्योंकि वैल्यू घट है, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा इन्ना। जी तुसीं ये एग्जाम्पल यही लो, ये कितनी वैल्यू देखो ज़्यादा, टर्म्स ऑफ 22 -16 सी, बहुत घट सी, ये बहुत ज़्यादा यही रिएक्शन। हुण ये रिएक्शन की शो करती है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल आ, यानी ये इन्ने स्टेबल नहीं है, यानी हुण के दी वैल्यू ज़्यादा की ज़्यादा भी प्रोडक्ट ज़्यादा बनया। प्रोडक्ट कोई भी चीज़ ज़्यादा क्यों बनेगी, स्टेबल होने लिए। मैं तुहानूं दस्सिया ना, दुनिया का हर एक कंपाउंड क्यों बनता, टू गैट द स्टेबिलिटी, स्टेबल होना है, ठीक है। इसदा मतलब कि ये प्रोडक्ट जल्दी बनया, ज़्यादा बनया, इसदा मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ते ऑक्सीजन आपस च इन्ने स्टेबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल आ। ये तो सानू ये पता लगता कि इसलिए ये प्रोडक्ट। सो के दी देखो मैग्नीट्यूड तो सानू किद्दां पता लगता किहड़ी चीज़ ज़्यादा बनेगी किहड़ी नहीं। तो फॉर दिस रिएक्शन के वेरी लार्ज, दैट मीनस CO2 जिहड़ा ज़्यादा बनेगा। तो इत्थों सानू पता भी लग गया कि किहड़ा ज़्यादा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल हैगी किहदे नालों, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अंडर दीज कंडीशन। सो इत्थों सानू डाटा तो बहुत ज़्यादा हैल्प मिलती है ये सारियां वैल्यूज़ फाइंड आउट करने लई, ठीक है। एक ना सानू डाटा दस्सिया कि जे के दी वैल्यू ना 10 की पावर 3 तो ज़्यादा हैगी आ, प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडोमिनेट करेगा, ठीक है, प्रोडोमिनेट करेगा, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एज कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होएगी, नियर टू कंप्लीशन होएगी, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। मतलब साडा पर्पज़ की हुंदा रिएक्शन लई, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चाहिए सानू। दैट मीनस के दी वैल्यू जो भी ग्रेटर दैन 10⁻³ होएगी, दैट मीनस के दी वैल्यू ज़्यादा होएगी, मतलब की होएगी रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन होएगी, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन कंप्लीट होएगी। जे यही वैल्यू लैस दैन हैगी 10⁻³ रिएक्शन दसियां देखो जिन्हां दी वैल्यू 10 की पावर 3 तो कितनी ज़्यादा हैगी, ठीक है। ये सारियां जिहड़ियां नियर टू कंप्लीशन जल्दी हो जांदियां रिएक्शन। 10 की पावर -3 तो घट वैल्यू मतलब दसदी आ प्रोडक्ट जिहड़ा प्रोडोमिनेट नहीं करेगा, रिएक्टेंट प्रोडोमिनेट करेगा, ठीक है। मतलब कि दी वैल्यू स्मॉल हैगी आ, रिएक्शन जिहड़ी घट प्रोसीड होएगी, ज़्यादा नहीं होएगी, प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही ज़्यादा रहेगा। ये एग्जाम्पल दसी देखो ये वाले, यानी ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है इस करके। सो ये डेंस इत्थे तुहानूं एक डायग्रामेटिकली बहुत वधिया रिप्रजेंटेशन मिल जाएगी। एक के दी वैल्यू जो दोनों के विचकार लाई करती है, दैट मीनस दोनों रिएक्टेंट ते प्रोडक्टां दी एप्रीशिएबल कॉन्सनट्रेशन हैगी, ना ज़्यादा रिएक्टेंट ते ना ज़्यादा प्रोडक्ट। ये देखो बहुत वधिया दस्सिया होया। 10⁻³ तो लैस वाले आ, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड नहीं प्रोसीड करनगियां, इधर बहुत जल्दी प्रोसीड करनगियां, कंप्लीशन हो जाएगी, इन्हां दे विचकार दोनों जिहड़े इक्विलिब्रियम ते होणगे। क्लियर। नैक्सट असी एक पढ़िया सी कि प्रिडिक्शन भी करती है डायरैक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रिडिक्ट करती है डायरैक्शन ऑफ रिएक्शन भी। वो ना आपां क्यू फाइंड आउट करना, क्यू सानूं पता ही है किद्दां पाई क्यू पहला भी देखिया किद्दां फाइंड आउट करते आपां। क्वेश्चन जिहड़ा रिएक्शन क्वेश्चन आ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेम इक्विलिब्रियम ते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे बराबर ही हुंदा, बट इन केस ये 3 पॉइंट याद करने हैं, जे तां ये केसी तो वड्डा हो जाता, यानी जिहड़ी रिएक्शन वो ज़्यादा प्रोसीड करेगी फ्रॉम राइट टू लैफ्ट, यानी कि राइट टू लैफ्ट, राइट तो लैफ्ट वन, दैट मीनस रिवर्स डायरैक्शन। जे लैस दैन होएगा फिर प्रोडक्ट ज़्यादा होएगा क्योंकि केसी ज़्यादा हो गया, केसी तुहानूं पता ही के ज़्यादा होएगा तो फॉरवर्ड डायरैक्शन होएगी, बट जे इक्वल होएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे बराबर ही होएगा, ठीक है। सो असीं कह सकते रिएक्शन आफ्टर डेंसिटी टू फॉर्म प्रोडक्ट कदों जो ये तो लैस हैगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट कदों बनाएगा जो क्यू ग्रेटर दैन के हैगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे बहुत ज़्यादा, देखो डायग्रामेटिकली भी दिखाया हुआ। प्रोडक्ट कदों जो घट हैगा केसी तो, पर इस केस च नहीं होएगा, इत्थे इक्विलिब्रियम च आ गया। ये एक एग्जाम्पल भी दसी होएगी, नहीं बस कोई नहीं। नैक्सट देखते आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कैमिकल रिएक्शन, कैमिकल इक्वेशन। हुण इहदे विच देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ते कैमिकल इक्वेशन दे विच आपां किद्दां रिलेशन देखते हैं। ये 4-5 पॉइंट तुहाडे लई बहुत हैल्पफुल होने वाले। रिएक्शन आ के दी वैल्यू मान लो ये कोई एक्स आ गई, बट जे यही रिएक्शन मैं अल्टा देवां, यही रिएक्शन देखो रिवर्स करके लिखती मैं, यही जिहड़ी के दी वैल्यू आएगी ना हुण इहदे लई वो आएगी 1/x, वो भी उल्ट जाएगी वैल्यू। देखो ये लई के दी वैल्यू की आ गई 1/x। जे तुसीं रिएक्शन रिवर्स कर दोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिहड़ा वही आपां पढ़िया भी सी ना, के फॉर बैकवर्ड इक्वल टू 1/k फॉरवर्ड, या के फॉरवर्ड इक्वल टू 1/k बैकवर्ड। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन जिहड़ा इनवर्स हो जाता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, जिहड़ा फॉरवर्ड लई सी वो रिवर्स चल गया किहदे लई बैकवर्ड। जे असी डिवाइड करते हैं, मान लो किसी रिएक्शन 2 ने डिवाइड किया, यही वाली रिएक्शन सी, यही वाली लैके चलनी आपां, ये वाली रिएक्शन मैं 2 ने डिवाइड कर दिता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दी वैल्यू कितनी सी x सी। हुण जो फॉर एग्जाम्पल मैं 2 ने डिवाइड किया, देखो 2 ने डिवाइड हो गया, तो वह जो
ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇਣੀ 1/2 ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ठीक है जिदा मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं 3 ने डिवाइड कर दी इतने पावर की आ जानी सी 1/3 आंसर ये डायरैक्ट याद रखनी तुसी ठीक है सो एक ये भी वाला है नैक्सट है इदा उन्होंने दसिया कि जे एन ना मल्टीप्लाई कर दें तो के दी पावर की आ जाएगा एन आ जाएगा ठीक है नैक्सट देखो ये जो ये वाला डिवाइड पहले डिवाइड का किया जिदा मल्टीप्लाई किया उन्नी पावर जो डिवाइड करोगे पावर च डिवाइड हो जाएगा जे मल्टीप्लाई जो हमने 2 ने सारी रिएक्शन मल्टीप्लाई किया फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर च बस पावर च लेके जाना इन्ना याद रखियो ये जनरल रिएक्शनस लिखिया हुई हैं ये दसिया हुआ रिएक्शन देखो ये अलग अलग रिएक्शन बनाई देखो ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट हैगी 4th पॉइंट जे फर्दर स्टैप होंगे ना फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हैगी ये के की वैल्यू लिखी हुई है एंड ये 2 रिएक्शनस हैगियां ठीक है इन्हों तो लेट्स से प्लस हो के इन्हों प्लस करके या सबट्रैक्ट करके कुछ नवा प्रोडक्ट साढ़े को बनता पाया देखो सपोज द रिएक्शन अकर इन द 2 स्टैप है 2 स्टैप होंगी पहले N2 तो O2 गए 2NO बनया फिर 2NO तो हो गए फिर साढ़े को NO2 बनया रिएक्शन यही है ये 2 स्टैप हुई ये K1 है ये K2 है यानी कि हुण इहदा जिहड़ा कॉन्सटेंट हो गया ना K वो इन्हां दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा मतलब याद रखियो कभी भी 2 रिएक्शनों तो एक रिएक्शन बनती पई आ ना उन्होंने तुसी कॉन्सटेंट जी इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट आपस में मल्टीप्लाई कर देने वैदर वो ऐड करके सबट्रैक्ट करके जिदा हुण देखो यही रिएक्शन है ना इदा दी पेपर च आने चांसिस ज़्यादा हुण तुसी इहनूं ऐड करोगे 2NO ना NO कैंसल इत्थे आ जाएगा N2 देखो आ गया N2 O2 प्लस O2 2O2 इधर 2NO2 ऐड किया सो हुण ये जिहड़ी रिएक्शन आ इहदा जिहड़ा इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट होगा लेट्स से इहदा K1 है इहदा K2 आ वो इन्हां दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा क्योंकि इन्हां दोनों यूज़ करके रिएक्शन बनी है ये देखो इन्होंने दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ गया ठीक है किद्दां आया तुहानूं दस दिता तुसीं मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो भी कट हो जाने दोनों के K1 K2 लेके आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो कट हो गए जिद्दां मर्जी कर लो तुसीं नैक्सट ये रिएक्शनस दित्तियां हुई K1 K2 ठीक है अलग अलग सारे ने लिखा होया तुसीं इन्हां नूं पढ़ सकते हो सो ये उन्होंने जनरली रिप्रजेंट कर दिता कि जो 1/2 ने डिवाइड कर दिओ 1/2 पावर से चला जाता जिदा 48 है जो तुम रिएक्शन 1/2 ने डिवाइड किया 48 की पावर 1/2 हो जाएगा ठीक है जो मल्टीप्लाई कर दो तो पावर 2 हो जाएगी डिवाइड च नहीं होएगी ये देखो जनरल रिप्रजेंटेशनस लिखती हैं जिहदी मर्जी सारिया रिएक्शन दसिया है जनरल सारे ने दस दिता इत्थे नैक्सट चलते हैं हुण आपां इहदे कुछ क्वेश्चनस देखते हैं प्रैक्टिस करते हैं तुहानूं ये सारी जो मतलब कैप हो जाएगा कि किद्दां फाइंड आउट करते हैं आपां यस तो शुरू करते हैं आप वट हैपन टू रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन वैन द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड की हुंदा है फॉरवर्ड तो बैकवर्ड डायरेक्शन जो इक्विलिब्रियम आ जाता आप स्टार्टिंग च पढ़िया ना इक्विलिब्रियम तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन वट हैपन टू इक्विलिब्रियम इन द रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कैटालिस्ट एडेड आप किया कैटालिस्ट ना की हुंदा कैटालिस्ट ऐड करना स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कभी कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि जिन्ना कैटालिस्ट फॉरवर्ड इनक्रीज करता उन्ना ही बैकवर्ड करता है ठीक है नैक्सट है N2 ये वाली रिएक्शन दी हुई है ये इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तक के जे इस रिएक्शन की मैं अमोनीया की डीकंपोजिशन करावा हुण अब ये तो सीगा मैं नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन का यूज़ करके अमोनीया बनाया बट जो मैं अमोनीया को डीकंपोज करा देवां अगेन फिर की बन जाएगा N2 + 3H2 ये पूछता पाया कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की होएगा फॉर द रिएक्शन इनवॉल्विंग डीकंपोजिशन जिहदी मैं डीकंपोजिशन देखो रिवर्स हो गई रिएक्शन तो नवा जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा की होगा 1/k हुणे तो आप पढ़ के आए ठीक है सो डीकंपोजिशन लिए 1 अमोनिया की 1 मोल लिखा सी ये 2 मोल लिए है ना ठीक है आप जो आंसर कढ़िया सीगा दैट वाज फॉर द 2 मोल मतलब मैं 2NH3 लिए कढ़िया ना 2NH3 लिए मेरे को आ गया सीगा 1/k ठीक है बट हुण मैनू 1 मोल चाहिए मैं सारे डिवाइड कितना कराँगी 2 ने डिवाइड कराँगी तो के दी पावर की आ जाएगा 1/2 दस्सिया सी ना जिन्ने ने डिवाइड करोगे 1 मोल लिखे आने 1 मोल अमोनीया दी डीकंपोजिशन ली सो 1 मोल डिवाइड मैं सारी क्वेश्चन कितना कराँगी 2 ले क्योंकि 1 बनाना इतने मैं जो मेरा आंसर से वो पावर भी कर देंगे 1/2 हुणे आप करके आए ना जो डिवाइड कराँगे के दी पावर वही 1/2 हो जाएगा जो मल्टीप्लाई कराँगे के दी पावर जस्ट डायरैक्ट आ जाएगा ठीक है सो देखो ये यही होया 1/√k 1/2 का पावर का मतलब होंगे रूट नैक्सट देखो सानू 2SO2 + O2 दिता है 2SO3 मैं फाइंड आउट किहदा करना 1/2 लिए देखो सिंपल है ना हुण पूरी रिएक्शन हो जो मैं 2 ने डिवाइड कराँगी जिहड़ा भी इहदा आंसर है उसकी पावर भी की हो जाएगा 1/2 देखोगे ना 1/2 नैक्सट है SO3 उल्टा दिता इस रिएक्शन देखो SO3 गिव्स SO2 + ½ O2 देखो उल्टाया भी आ प्लस डिवाइड 2 भी किया इस रिएक्शन तो रिएक्शन ध्यान देखो इस रिएक्शन इधरों इधर प्रोसीड की ना पावर डिवाइड भी 2 ना हुई यानी जो प्रोसीड की नहीं पहला तो
1/2.5 इंटू 10⁻10 आ जाएगा। पहला तो यदा कॉन्सटेंट उल्ट जाएगा, फिर उन्होंने डिवाइड भी किया 1/2, तो इन्हें भी असी कितना डिवाइड कर देंगे 1/2 ना। सो यानी यही चीज़ जी साढ़े को डिवाइड च आ जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं, ये देखो सॉरी दिस। ठीक है, इनू आप उल्टाया भी प्लस डिवाइड भी किया। उस तो बाद 3 है, देखो 3 ना ये 3/2 ना डिवाइड किया सारी रिएक्शन। जे 3/2 ना डिवाइड करांगे वो पावर की हो जाएगा 3/2। सिंपल है। ठीक है, सो कुछ औखा नहीं है, ईजी है। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े होर क्वेश्चन है जिदा ये देखो रिएक्शन ये वाली तो ये वाली रिएक्शन दी हुई सानू। ये दस रहा कि यदा कॉन्सटेंट K1 है, यदा K2। इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट पूछता इस रिएक्शन ਲਈ N2 2O2 गिव्स 2NO2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ NO ਦੀ ਪਾਵਰ 2 अपॉन N2 एंड O2। तो इसका की होएगा NO ਦੀ पावर 2 सॉरी प्रोडक्ट NO2 ਦੀ पावर 2 अपॉन NO स्क्वायर नाल क्या आ जाएगा O2। सॉरी दोबारा करते आप, देखो दोबारा करते हैं, इतने लिखते आप ये NO2 है, ये आप इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट लिखिए की होएगा कि प्रोडक्ट जो कोफिशिएंट होंदा पावर चल जाता, नीचे रिएक्टेंट N2 ते O2। जो मैं ये लिखांगी की होएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की है साढ़े को NO दी पावर 2 नाल O2। हुण देखो ये कट होने वाले कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा कट, तो की बच गया मेरे को एक ये बच जाएगा, एक O2 दी पावर 2 बन जाएगा। यानी देखो जी मैंने चाहिए चीज़ें बन गई कि नहीं, NO2 दी पावर 2 नीचे N2 तो O2 दी पावर 2 बन गया ना। यानी मैं जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देवां ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ K1 ਤੇ K2, ਤੁਸੀਂ लिख के देख लो K1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ केव ਤਾਂ ਲਿਖਾਣੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ कि प्रोडक्ट की कॉन्सनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट के कोफिशिएंट ऑफ पावर चल जाते, इन्होंने दोनों ने जो आपस में मल्टीप्लाई किया ये बन गया। दैट मीनस कि यदा आंसर क्या आएगा K1 गुणा K2। तो यही जो तुम डिवाइड करोगे मतलब 1/K1 इंटू K2 डिवाइड अल्टा दोगे तो तुहाडे कोल ए वाला बन जाएगा। करके देख लेना बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हुणे तो आप बनाया सी यही बनया सीगा NO दी पावर 2 अपॉन N2 ते नाल O2 दो बार सी O2 दी पावर 2। जिन्हें मैं अल्टा दें ये चीज़ नीचे ला जाए ऊपर ला जाए ही चीज़ बन जाएगी। ये वाला प्रोडक्ट आ इधर नीचे है ऊपर चला जाएगा, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, यानी ये ही उल्टा होया है 1/K1 K2। इदा पेपर च आ जाने तुहानूं। नैक्सट है जो वैल्यू K दी लैस दैन 1 हैगी की इंडीकेट करती है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत घट प्रोसीड हुई है ना। K दी वैल्यू जिन्नी वड्डी होएगी उन्नी ज़्यादा सानू दी रिएक्शन ज़्यादा हुई, जो 1 तो घट हैगी तो मतलब की रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड ही नहीं हुई फॉरवर्ड रिएक्शन। नैक्सट एक क्वेश्चन पूछा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैगी यानी हीट उन्हें बाहर कढ़नी है। वट हैपन टू इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट इफ द टैंपरेचर इनक्रीज। आप उदा भी किया सी एक्सो दे विच आपां जे K वधांदे आ ते जिहड़ा टैंपरेचर वधांदे आ ते उहदे नाल की हुंदा सीगा K घटदा सीगा, कीता सीगा ना। सो इनू इदा याद करना, इदा गल उन्हें बैकवर्ड दसिया कि बैकवर्ड वधेगा, जब मैं तुहानूं दसिया एक्सो मतलब उन्हें हीट बाहर कढ़नी, तुसीं हीट हो ज़्यादा दे रहे हो। ठीक है ना, सो इसका मतलब उहदे विच K दी वैल्यू की कर जाएगी डिक्रीज़ करेगी, दिस KF। नैक्सट है राइट द एक्सप्रैशन फॉर KP KC लिखाने से KC आ KC लिए लिखोगे कॉन्सनट्रेशन सारिਆਂ ਦੀ, बट जो KP की गल हैगी उदों तुसी सिर्फ गैशियस लेने हैं। ठीक है, उदों गैशियस का प्रैशर लेने आप, बाकी नहीं लेने। बस यही क्वेश्चन सीगे, ये सारे कर लेना। जो वीडियो पसंद आई मैनूं लाइक एंड कमेंट करके जरूर दसना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।